सो अज आप श्री पौंटा साहब की पावन पितर धरती वो धरती जिथे 10वें पातशाह महाराज जी के पावन चरण छोह आ ते बेअंत बाणियां सतगुरां ने इत्थे उचारण कीतियां, उन्हां नूं लिखिया। सो उस धरती ते ਜਿਹੜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ अपना उत्तराखंड की सरकार के नाल तालमेल किया। दिल्ली कमेटी वाले साडे सरदार जगदीप सिंह जी कालो होनी सकत्तर साहब जिन्हों ने उत्थे तालमेल बिठाया, नाल साडे भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी नामधारी बाजपुर तो जिहड़े उत्तराखंड के सर्वे सरवा ने सिख कौम के अपना आगू ने। इस तरह ही दिल्ली कमेटी तो मैंबर हरदीप सिंह जी, साडे भाई सरदार साहब सुरिंदर सिंह जी खालसा जी, सारिਆਂ ने इकट्ठियां हो के अते दास जिन्हां दी ड्यूटी पंथ वालों लगी सी भी ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਹੈ, 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਏਮਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ CM ਸ੍ਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਟਰਸਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ DA ਲੀਗਲ ਜਾਂ SSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ 29 ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਗਾਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਪਈਏ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ये हमारी नहीं है, समूचे जितना भी सिख समाज है, पूरे देश विदेश में जितने भी सिख लोग बसते हैं, है ना, ये सबकी जीत हुई है और ये एक न्याय की जीत हुई है। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, यहाँ पे जो भी हुआ, देखिए जोर जबरदस्ती से कोई भी चीज़, कोई भी मांग नहीं मनवाई गई है। जो भी मांगे थी हमारी बहुत जायज़ थी और बहुत सिंपल सी मांगे थी, जो कि हमें लगता है कि जो प्रशासन कर सकता था और प्रशासन ने अपना काम जो है वो बखूबी निभाया है। और सबसे बड़ी बात ये है और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जितना भी ये घटनाक्रम हुआ, जितनी भी जो भी हमारा चाला था, जो भी था, ये सारा का सारा हमारा जो बहुत शांतमय तरीके से हुआ। किसी भी तरीके की कोई इसमें हिंसा नहीं हुई, किसी का कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ, है ना, नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच किसी की बॉडी के ऊपर, है ना। तो ये सबसे बड़ी जीत है और हम आगे भी यही है ना आपके चैनल के माध्यम से, है ना, हम यही सुनेहा देंगे आगे भी कि कोई भी मोर्चा होता है किसी पे भी, है ना, हर चीज़ कोई गर्मा गर्माई से या जोश से नहीं होती है। जितने हमारे पहाड़ी भाई भी हैं, हमारे हिमाचली भाई भी हैं, तो सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि देखो, अगर आप
प्यार की सांस डालोगे तो हमारे इधर से भी आपको डबल प्यार मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नफरत, हेट स्पीच फैलाओगे तो हमारे यहाँ से डबल ट्रिपल हेट स्पीच आती है। तो हम नहीं चाहते कि किसी तरीके की, है ना, हेट स्पीच वाला हम ये दौर शुरू करें। और क्योंकि इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर कुछ बड़े लोग, कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं और इसके अंदर पिसती आम जनता है, आम लोग पिसते हैं। अब जितना ये घटनाक्रम हुआ है, जो कुछ भी है, जितनी हमारे हेमकुंड साहब के रास्ते में जितनी पहाड़ी भाइयों की दुकानें थी, जो यात्रा चल रही थी, वो जो प्रभावित हुई है, उससे देखिए टूरिज्म को फर्क पड़ा है, ठीक है, घर को भी फर्क पड़ा है उसके अंदर, है ना। क्योंकि वहाँ जितने भी पहाड़ी भाई हैं, सबके सारे अपनी फैमिली वाले हैं, सारे गरीब तबके के हैं, तभी वो दुकानें लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई वो लैंडलॉर्ड नहीं है कि, है ना, कि वो इतने ऊंचा हाइट के ऊपर दुकानें लगा के बैठे हैं। तो हमारा बस यही एक मैसेज रहेगा लास्ट में कि शुरू से लेके अब तक हम शांति बना के आए हैं और आगे भी हम शांति बना के चलेंगे। सिंह हमारे बहुत जल्दी हमारे पास आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, तो उनको साथ में लेके यहाँ से अरदास बेनती करके, जहाँ से मोर्चा शुरू हुआ था सिंह शहीदा स्वाना साहिब से, वहीं दोबारा पहुंच के अरदास बेनती करके उनको सम्मानित करके उसके बाद फिर आगे का जो भी है वो प्रोग्राम देखा जाएगा। सोशल मीडिया पे आपके कई हमने देखे हैं कि पेजेस हैं और कई अपनी अपनी अलग अलग अकाउंट्स हैं, उस पर आप लोगों ने बड़ा शालीनता से, सहजता से मैसेज देने की कोशिश की ताकि नकारात्मकता आगे ना बढ़े। और कुछ लोगों ने इस पे नकारात्मकता, जो सामाजिक तत्व थे, उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये वीडियो वाला हिसाब खेलना, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें किसी का खर्चा नहीं आता, है ना। एक सिंपल वीडियो बनानी है, 4 गालियां देनी है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देनी है, इसके लिए किसी का खर्चा नहीं लगता। जितने समूचे सिंह हैं ये सारे कर सकते हैं ये चीज, ठीक है ना, आई थिंक सो। बट उसके अंदर दिक्कत ये है कि आज हम हेट स्पीच फैलाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। एवरीवन इज टेम्परेरी है, ठीक है। जितने यात्री भी आ रहे हैं, वो देश विदेश से कहीं से भी आ रहे हैं, वो सारे एक टेम्परेरी हैं, ठीक है। वो आएंगे, अपनी यात्रा करेंगे और चले जाएंगे। मेन सफर कौन करेगा? जो यहाँ पे रहने वाला सिख है, जो यहाँ का परमानेंट सिख है, जो यहाँ की, है ना, जो यहाँ के डोमिसाइल है यहाँ के, उनको सफर करना पड़ता है। तो देखिए, सिख समाज, हम नहीं चाहते कि आज हमारी वजह से, है ना, किसी भी तरीके से सफर करे। आज जैसा आपने देखा ही है, जो मोर्चा लगा है, महाराज ने हमें विजय प्राप्त कराई है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम हिंसा के साथ करते तो यहाँ से, अब हमें तो देखिए उन सिंहों को लेके मोहाली जाना है, हमने पंजाब वापस जाना है, बट यहाँ का सिंह ना सफर करे। इसी करके हम शुरू से एक ही बेनती कर रहे थे कि जो भी है वो बहुत शांतमय तरीके से किया जाए। और सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के ओट आसरे से, है ना, बाबा दीप सिंह जी ने इस मोर्चे की खुद आपने अंग संग होके जो है ना, वो पैरवाई की है और जो खालसे किया वो जीत हुई है आज।